Good evening. As we had discussed yesterday class, in question based on Python dictionary and tuple methods, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कल जो कि आपके क्वेश्चन बेस्ड थे डिक्शनरी एंड टपल टॉपिक पे पाइथन पे. These are the 15 questions that we had discussed. If you have any doubt still in these questions, you can ask to me. आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो इन क्वेश्चंस में से यू कैन आस्क मी. अदरवाइज वी विल मूव टू अदर टॉपिक. हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वरना. These all questions we had discussed yesterday. Total 15 questions we have discussed yesterday, and question number 16 we had not discussed because it is part of next unit that we are going to discuss now. So if you have any doubt you can ask to me. No doubt. Please give reply. You have doubt in any question. Okay, so I am going to start today new topic that is according to our syllabus in this course. We will start today topic that is functions. Function in Python. We will discuss detail in this topic. So our today topic will be based on function in Python. So we will discuss today topic that is function in Python. So today in this unit we are going to discuss about function in Python in detail. फंक्शन क्या होता है पाइथन में, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. वी विल डिस्कस दिस प्रैक्टिकली. सो टुडे टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज फंक्शन इन पाइथन. So first of all we will understand what is the mean of function. Function is basically the block of code that represent by single name to perform some task. Function take arguments in form of parameter. Function return, very important thing, function return data as a result. So this is the definition of function. Function is a block of code, that is block of code. We will understand what is the meaning of block of code that represent by single name to perform some task. Function take argument in form of parameters
and function return data as a result. So first question, how to declare and define function in Python. So for that we use def keyword to define function in Python. How it work? Example, suppose I want to create a function. Its syntax is like that. First of all, I will write def keyword and then space function name, any function name I can take, then open parenthesis and close parenthesis, then semicolon, and inside that I will write that block of code. Inside that parenthesis I will give parameters. This is the way we can declare or define the function. For example, suppose I am declaring a function named hello message def hello, and in this function I just print hello message. And one main important thing about the function is function work only after it called. फंक्शन अपने आप में वर्क नहीं करता जब तक कि आप उसको कॉल नहीं करेंगे. आपको फंक्शन को कॉल करने की जरूरत होती है. तो फर्स्ट स्टेप है हाउ टू डिक्लेयर एंड डिफाइन द फंक्शन इन पाइथन. तो फंक्शन बनाने के फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए पाइथन में डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं. वी यूज डेफ कीवर्ड, def and function name. Here function name is hello, and second step is to call a function. To call a function, give the function name with parenthesis. This is the way you can call the function. For example, if I have declared this function, and if I want to call this function, I will just write hello. This will call this function and print hello message. So this is the way I can create and call a function. I will do practically demonstration so that you will understand how we can declare and call the function in Python. कैसे फंक्शन पाइथन में कॉल किया डिक्लेयर किया जाता है और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है और उसको कॉल कैसे किया जाता है, वी आर गोइंग टू सी इन PyCharm. So first of all, declare a function in Python. This is the comment I have passed. Declare and define a function in Python. So I told you will use def keyword. This is def, that is def keyword, and after that you will give the function name. Suppose I have given function name hello, and this is open parenthesis and close parenthesis. After that you will write colon sign, and inside that I have just type print message hello function. This is about declaration and definition of function, and if I will just execute this, it will not give any output. You can see it will not giving any output. So this is a definition that function
function work only after it call. जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तभी ये वर्क करता है. फंक्शन वर्क कब करेगा? जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा. इट वर्क ओनली इफ यू कॉल दैट फंक्शन. सो टू कॉल द फंक्शन आई टोल्ड यू, you have to just write function name with open parenthesis and close parenthesis. In this step, this will call the function hello. So when I will execute this, you can see the output is hello function is now displaying. So this is the way we can declare the function. And second step is, this is first step, declare the function using def keyword, def, then function name, and inside you can give parameters also. We will discuss how you will give parameters. So in this function I have used just hello message अपने यूज किया है और सेकेंड स्टेप में इसको कॉल किया हुआ है. इतना समझ में आया सबको? अंडरस्टैंड? You understand how we can declare and call the function? This is the first step. Now we will discuss about second thing, that is define parameters in function. So we can give any number of parameters inside the parenthesis of function. For example, I am using def keyword to function that will add two number. So I have given def keyword, then function name add, and inside that I have taken two argument, two parameters, that is x and y. Here x and y are parameters. These are parameters. Parameters are given at design time. Design time, it means when we are declaring and define the function, on that time whatever I have giving, that is called parameters. Now I have write the code like print x plus y. Now this is the declaration and definition of the function, और इसमें हमने पैरामीटर्स दिए हैं दो, x और y. अब हम दूसरे स्टेप में यहाँ पे इसको कॉल करेंगे. जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 2,3, these two is called arguments. These are arguments. Arguments are given at runtime, whereas parameters are given at design time. Parameters are given at design time and arguments are given at runtime when we call the the function. Function is called at runtime. Whenever we call the function, it will call at runtime. So here we have given two arguments. These 2,3 are arguments, whereas x, y is a parameter. तो होगा क्या इसमें, जब हम कॉल करेंगे तो 2 जो वैल्यू है x में आ जाएगी और 3 वैल्यू होगी y में आ जाएगी. तो 2 + 3 5 ये प्रिंट कर देगा. We can understand practically in PyCharm this.
पाइचार्ट में देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमारा फंक्शन है फंक्शन to add two number. So we will first def, then we have given the function name add, and here I have taken two parameter x and y, and inside that I have just write print x plus y. Now in third step I will just call by function name, and I have passes two argument 2 comma 3. When I will execute this, it will give the output 5. 2 plus 2 comma 3, that is when it is called at runtime. This is called call the function here we have passed two arguments. हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास की हुई हैं, और यहाँ पे जो हमने दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. Here we have designed two parameters. We have given two parameters. This is x first parameter and y second parameter. When we design the function, हम जब डिज़ाइन करते हैं उस समय जो दिया जाता है वो उसको कहते हैं पैरामीटर्स, और जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो उस समय जो वैल्यू पास होती है रन टाइम पे उनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट. सो इट विल वर्क लाइक दैट. अंडरस्टैंड? confusion? Any confusion? Then please ask. We can pass any number of arguments in function. Next is return value from function. How can we return a value in a function? We had discussed, हमने डिस्कस किया डेफिनेशन में, डिस्कस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया है कि फंक्शन जो होता है फंक्शन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट. फंक्शन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट. सो व्हाट इट मीन? So how we will do return the value from the function. फंक्शन से हम वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, अब इस पे हम फोकस कर रहे हैं. So return the value from function, for that we use return keyword. We use return keyword. रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करने के लिए. कैसे? फॉर एग्जांपल हमने अभी दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाया, अब हम उससे वैल्यू रिटर्न करवा के देखेंगे. वी विल सी दैट हाउ दिस फंक्शन ऐड फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव राइट द डेफ कीवर्ड, देन फंक्शन नेम दैट इज ऐड. सपोज in this case I want to add three numbers, so I have passed x comma y comma z. Here x, y, z are parameters. Now I have write the code like that. Suppose I am taking a variable z, that will do x plus y plus z. Now I have write the keyword return
z. So it will return the z, that is sum of three numbers to the call part. So it will return this z to the part that from where we are calling, जहाँ से हम इसको कॉल करेंगे वहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कॉल किया प्रिंट फंक्शन के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कॉल किया, यहाँ पे मैंने 2, 3 और 5 मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दी. सो नाउ हियर आई एम कॉलिंग द फंक्शन, दिस इज कॉलिंग द फंक्शन. These are the parameters and these three are arguments. So होगा क्या कि यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 2 होगा 3 में, x में क्या होगा 2 आ जाएगा, y में आ जाएगा 3 and z will take, sorry, it will, suppose I have taken variable d here, d, then return d, because z I have taken already. So return d, so z will contain value 5, so it will add 2 plus 3, 5 plus 5, that is 10 in d, and return d here, क्योंकि यहाँ से फंक्शन को हमने कॉल किया है तो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके आएगी और आपका 10 आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास में. तो कैसे होगा इसको हम पाईचार्ट में प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम 3 आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी 3 पैरामीटर्स आई हैव गिवन, x, y और z. I can directly return here also, don't use other variable, I can like just return, I can do like this also, x plus y plus z. So what it will do, it will first x plus y plus z and return to the calling function. यहाँ पे कॉल हो रहा है, this is the call. So I have taken 3 arguments here. Since this function is calling and it return some return some value, so we can either store this value in a variable or directly in call by print function. I am explaining by 2 ways. Suppose I have taken some variable here which will take, when this function is called, it will go here and in finally it will return x plus y plus z, and x plus y plus z return and it will store in some variable. So when I will print sum, it will give value. So now you can say the output is 10. How it is going? First of all, we had given the function definition. The magic is that function will not work until you will not call the function. जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे आप कुछ भी काम नहीं करेगा फंक्शन. अगर मैं इस चीज को हटा देता हूँ, यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, नो आउटपुट इज शोइंग. सो इट शो दैट फंक्शन वर्क ओनली इफ इट इज कॉल्ड. जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तभी वर्क करता है फंक्शन. तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, आपको कैसे पता लगा कि फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू? बिकॉज आपने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज किया हुआ है. ये रिटर्न फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न के कीवर्ड क्या करेगा, रिटर्न करेगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है. फंक्शन कॉल यहाँ पे से हुआ है, फंक्शन इज कॉल फ्रॉम दिस पार्ट and it finally return value here and this value is stored into some variable. और मैं ऐसा भी कर सकता था, इस सम वेरिएबल को ना लेके मैं यहाँ पे सीधे क्या करता, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी इसको कॉल कर सकता था. I can also call this in this print statement like add then 2 3 4. It will also give the same output. So it will give same output. So now you understand how we can return the value from the function, and according to our function we will design this. इसको हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. हमने फैक्टोरियल ऑफ द नंबर बनाया था प्रोग्राम,
we had developed the factorial of a number using in Python script. आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं. सो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर using function that will return factorial. So how it will work? सबसे पहले हमने क्या करा, डेफ कीवर्ड बनाया. यहाँ पे सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड देते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल नाम से. अब इसको रटना नहीं है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे. And in this here I am giving one argument that is num. अब इसमें क्या होगा कि लॉजिक पूरा वही रहेगा. Here I have taken the variable fact की वैल्यू इनिशियल जो हमने पहला डिस्कस किया था, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 ले ली है यहाँ पे. देन फॉर लूप लगाया है यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज. दिस लॉजिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. I comma num plus 1. Inside that I have written fact equals to fact multiply by I, and from here I will return, now I will return here, return final value of fact. Final value of fact I will return. So this is the this is the function definition. Here I have designed the function factorial, and in this function factorial I have given one argument. मैंने इसमें एक आर्गुमेंट दिया हुआ है, num नाम से दिया हुआ है, और फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, और फॉर लूप है फॉर आई. ये फैक्टोरियल का लॉजिक मैंने डिजाइन किया है, और लास्ट में ये फंक्शन क्या है, रिटर्न कर रहा है फैक्ट. अब क्या है फंक्शन, ये तो फंक्शन मैंने बना दिया, लेकिन ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा बिकॉज फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है. अब इसको कॉल करना है. कॉल कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको फंक्शन को कॉल किया. तो आइदर आई कैन यूज वन वेरिएबल विच स्टोर द वैल्यू ऑफ फैक्ट. सपोज आई हैव टेकन द वेरिएबल एज फैक्ट ऑफ num variable, and here I am calling the factorial function. This is factorial function, and inside it suppose I have given the value 5. I want to get the factorial of 5. When I will print fact of num, how it will work, it will give factorial 5 or not. So now you can see this is the output 120, that is factorial of 5 is displaying. So I can do one thing also, I can take a num type variable, number type variable. So according to my choice I can enter the number, input, enter number, and this number will pass as a argument. This is one argument. So when I will execute this, it will first ask me the number. Suppose I have given the number is 7, so the factorial of 7 is 5040. So you can understand that in this program we have first declare and define a function with one parameter, and this is the logic block, this is block of code, and finally it return the value of fact after calculation. And when I am calling this function from this side, this is the, यहाँ से कॉल हो रहा है फंक्शन, कॉल द फैक्टोरियल फंक्शन. यहाँ से फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद यहाँ पे गया, यहाँ से इसने पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट किया, और फाइनली फैक्ट की वैल्यू जो रिटर्न होके आई यहाँ पे, वो फैक्ट नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई. We can do one thing also, instead of calling like that to store in value in fact num, I can directly pass fact
factorial function inside this print statement also. print यहाँ से भी कॉल कर सकता हूँ मैं फैक्टोरियल फंक्शन को, और यहाँ पे मैंने नम पास कर दिया, सॉरी नंबर वेरिएबल का नाम नंबर लिया है हमने. when I will execute this, you can see the same output here also. Suppose I have given the number 6, so this is the factorial of a number. So this is the way we can declare and define the function in Python. Understand? इस टॉपिक में किसी को इस टॉपिक में डाउट है तो पूछिए आप, समझ में नहीं आया तो. इफ यू हैव डाउट आई कैन रिपीट अगेन. If you have doubt then please ask. This is the first program that we have made with the help of function. इससे पहले हमने इसको केवल सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट से बनाया था, अभी इसको हमने with the help of function बनाया है. अंडरस्टैंड? और कोई डाउट है तो पूछिए. Please give reply in message. Okay, so this is about function. How we in this now we have discussed what is function, how to declare and define the function. Second, how to call a function. How can we define parameters and pass argument at runtime, we have already discussed. Next we had discussed about return value from function. कैसे function से हम value return कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. Now next topic is passing different type of arguments in a function. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पासिंग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन अ फंक्शन. आर्ग्यूमेंट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया. आर्ग्यूमेंट दैट वी पास एट रन टाइम when function is call. when function will call होता है वहाँ पे ये पास की जाती हैं, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं. फर्स्ट तरीका था नो आर्ग्यूमेंट. नो आर्ग्यूमेंट मतलब जो कि हमने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया था, हेलो मैसेज जब हमने डिस्कस किया था, प्रोग्राम बनाया था, इस हेलो मैसेज में हमने इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास नहीं करी थी. यहाँ पे भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, डिज़ाइन और पैरामीटर भी कुछ नहीं दिया था, तो यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं करी थी. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नो आर्गुमेंट्स. नो आर्गुमेंट मीन्स ओनली वी डिफाइन फंक्शन. वी विल फर्स्ट define hello function and just print hello message here, and after that when we call this hello here also we don't give any arguments. This is no arguments. And second one is passing one or more arguments like that. Suppose I want to add three numbers like that. Def, suppose I want to multiply, I have make multiply function. Here I have taken x comma y comma z. So when I will do like that, return x multiply y multiply
z here, and when I call this function like multiply 2 comma 3 comma 4, so 2 is passed in x, y, 3 is passed in y, and 4 is passed in z. So 2 into 3 6, 6 into 4, that is, and I will just print this because I know this will call, and this will call this multiply function will call this multiply function and finally return value here. So after executing x into y into z, that is 24 will be displayed in output. Here we have passes one or more arguments. Third way, in this third category, that is variable length arguments. वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स का मतलब हमें पता ही नहीं कितनी आर्गुमेंट्स हमें पास करनी है. इफ वी डोंट नो एग्जैक्टली how many arguments we have to pass, तो देन क्या करेंगे हम, देन वी यूज फॉर दिस वी यूज एस्ट्रिक in parameters. Example, you will understand this with example. Suppose we have created a function def display tuple, and here I don't know how many arguments I can pass, so I have just write asterisk, then any name I can give. Suppose I have given asterisk list. This can be any name you can take, not list, you can take any name, or you can write like this def display, any name you can give, just like display and asterisk, एनी वेरिएबल नेम यू कैन राइट आफ्टर दिस. इसके बाद कोई भी लिख सकते हो आप. सपोज मैंने ए ही लिख दिया यहाँ पे, एस्ट्रिक ए, एनीथिंग आई कैन राइट. अब इसके बाद क्या क्या, मुझे पता नहीं कि इसमें कितनी आर्ग्यूमेंट पास हो रही हैं, तो यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक लगा दिया है, मुझे पता नहीं कितनी आर्ग्यूमेंट पास होगी. एट रन टाइम सपोज मैंने 4 आर्ग्यूमेंट पास करी, या कभी मैं 5 भी कर सकता हूँ आर्ग्यूमेंट, तो इट विल ऑटोमेटिकली जज. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे मैंने सिंपली एक लगा फॉर आई इन ए, एंड प्रिंट कर दिया मैंने आई को. अब देखते हैं कैसे वर्क करेगा. देन सपोज मैंने यहाँ से, अब यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो ये प्रिंट जब मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता हूँ, इसका मतलब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट वहीं लिख दिया है, या जहाँ पे कॉल किया वहाँ से भी प्रिंट लिख सकते हैं. सो यहाँ पे प्रिंट लिखने, इसके बाद जब मैं इसको कॉल करता हूँ, व्हेन आई विल कॉल दिस डिस्प्ले, here I have passed, suppose I have passed 4 argument, 4, 3, 5, 6, 7. Suppose I have given 5 arguments. So these are the variable number of arguments I am passing here. These are variable number, variable length, variable length number of argument. तो क्या होगा यहाँ पे हमने 4 आर्ग्यूमेंट पास करी हैं, तो ये लिस्ट, ये इनको 1 by 1 प्रिंट कर देगा. सपोज आई एम कॉलिंग, नाउ आई विल पास ओनली 2 or 3,
So in this case I have just passed two arguments. So in runtime I will give any number of arguments. So we will use asterisk keyword so that it will define variable number of arguments. इसको हम प्रैक्टिकली समझ जाएंगे यहाँ पे पाई चार्ट में जब इसको करके देखते हैं. Define variable length arguments in Python. So I have given def, suppose I have given display one name is the name of function. Here I have given asterisk, then suppose s नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है. Here I have just typed print for I in s. I just print I, and now this is the definition of function. Now I am calling the function display 1. Suppose I have given 2, 3, 4, 5 here. So when I will execute this, you can see the output 2, 3, 4, 5 it is giving. And again I will फिर से मैं कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले फंक्शन को. अब इस केस में मैंने 2,3 वैल्यू ही पास करी. तो सेकंड बार में क्या है, इसके बाद 2,3 इसने आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया. डिस्प्ले 2,3. नेक्स्ट टाइम आई हैव गिवन अगेन 3 आर्गुमेंट्स. मैं चाहता हूं कि ये सेम लाइन में ही आउटपुट आए, तो मैंने यहाँ पे एंड इक्वल्स टू स्पेस बार दे दिया है. तो प्रिंट स्टेट में सेम लाइन पे ही आउटपुट ये दे देगा आपको. तो देखिए आपको इसने क्या करा है, पहले इसने क्या करा 2, 3, 4, 5 प्रिंट किया. नेक्स्ट फिर 2, 3 प्रिंट किया और उसके बाद फिर 2, 3, 5 प्रिंट किया. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, वेरिएबल लेंथ की. कभी मैंने फर्स्ट टाइम मैंने 4 आर्ग्यूमेंट पास करी, फिर 2 आर्ग्यूमेंट पास करी, फिर 3 आर्ग्यूमेंट पास करी. तो रन टाइम ये डिजाइन यहाँ पे मैंने क्या है एस्ट्रिक लगा दिया है. यहाँ पे आई हैव यूज एस्ट्रिक हियर, सो इट डिफाइन दैट आई हैव यूज. अगर कहीं पे भी पैरामीटर में एस्ट्रिक लगा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे जो पैरामीटर्स जो आर्ग्यूमेंट हैं वो क्या है, वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने दी हुई है. समझ में आया? अंडरस्टैंड दिस और कंफ्यूजन? प्लीज गिव रिप्लाई. Please give reply if confusion in this topic, variable length arguments. No? Actually, this is the special parameter we pass. And is what is the use of and is the extra. You can see this print is also a function. This is built-in function. ये print भी क्या है, अपने आप में एक function है, लेकिन ये function कैसा है, built-in function है. We are not define this function. This function is already given by Python. This is built-in function. इस function के अंदर हम इस function को क्या कर रहे हैं, सीधे कॉल कर रहे हैं. और इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है, वो पाइथन में लिखी हुई है पहले से. हम यहाँ पे क्या 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं. फर्स्ट आर्गुमेंट में आई जो भी हम जो प्रिंट करना चाह रहे हैं. सेकंड आर्गुमेंट में ये जो एंड इक्वल टू लिखा हुआ है ये सेट करता है कि हम आउटपुट को कैसे शो करना चाहते हैं. अगर मैं यहाँ पे /t लगा देता हूँ तो हॉरिजॉन्टल टैब के फॉर्मेट में आउटपुट आएगा, हर वैल्यू के बीच में स्पेस आएगा यहाँ पे.
व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस यू कैन सी द आउटपुट लाइक दिस 2, उसके बाद फिर एक टैब का स्पेस आ रहा है, फिर 3 के बाद स्पेस आ रहा है, तो सारी वैल्यूज क्या है स्पेस के बाद दिखाई दे रही हैं। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा देता हूँ तो सारी आउटपुट क्या होंगे, वन सेपरेट लाइन में आएंगे। ये देखिए आप सारे के सारे आउटपुट क्या है सेपरेट लाइन में आ रहे हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ एंड, कि मैं एक ही लाइन में आउटपुट लेना चाहता हूँ, एक लाइन में विदाउट स्पेस आउटपुट लेना चाहता हूँ। स्पेस अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो भी थोड़ा स्पेस आ रहा है इसमें। नाउ अंडरस्टैंड। अगर हम एंड नहीं यूज करेंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, नेक्स्ट लाइन में ही आएंगे। हमने कुछ नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सारे के सारे आउटपुट नेक्स्ट लाइन से ही आ रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड वैल्यू, इट विल टेक लाइक दैट। और हम चाहते हैं कि सपोज हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट सारे के सारे सेम लाइन पे आए, तो हम यहाँ पे एंड का यूज कर सकते हैं। एंड क्या है, सेकंड पैरामीटर है, और उसमें वैल्यूज हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस होते हैं जो उनको हम यूज कर सकते हैं। जो भी हम सेट करेंगे उसके हिसाब से ये वर्क करेगा। So now we have discussed variable length argument. Next we are going to discuss keyword arguments. Next one is keyword arguments. Keyword arguments क्या होती हैं? Keyword arguments are given by की इक्वल टू वैल्यू वे, की इक्वल टू वैल्यू वे। अब इसको भी समझ एग्जाम्पल से समझते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, और x और y दो वेरिएबल हमने, दो पैरामीटर हमने यहाँ पे दिए हैं, x एंड y दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे दिए हैं। अब हमने इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट लिखा है, x प्लस वाई लिखा हुआ है, हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यहीं प्रिंट कर ले रहे हैं। अब इसके बाद जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा, मैंने कॉल किया, ऐड लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 2 कॉमा वाई इक्वल टू 3, तो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। दिस इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। सो आई कैन पास द वैल्यू लाइक दिस, नॉट डायरेक्टली 2,3 नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने लिया x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास किया है। x क्या है, की है, और उसकी वैल्यू 2 है, y की है, उसकी वैल्यू 3 है, तो आई कैन पास लाइक दिस। अंडरस्टैंड। और अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसका आपको। फॉर एग्जाम्पल हमने डेफिनेशन दी लिस्ट, और हमने यहाँ पे नेम और एज लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो प्रिंट कर रहे हैं नेम, और इसके बाद हमने प्रिंट किया एज को। सो अब मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, कॉल करते समय मैंने लिस्ट लिखा है यहाँ पे, और लिस्ट इज एक ऑलरेडी फंक्शन, सो लिस्ट वन नाम से बना लेते हैं इसको। लिस्ट नाम से फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में बना हुआ है, तो लिस्ट वन जब मैंने लिखा यहाँ पे नेम, मैंने लिखा नेम इक्वल टू अजय कॉमा एज इक्वल्स टू 22. So here you can now understand I have used keyword arguments. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे हमने जब आर्ग्यूमेंट पास करी है, दिस इज की एंड दिस इज इट्स वैल्यू,
again this is key and this is its value. So इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं पाई चार्म में. वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकली इन पाई चार्म. यहाँ पे मैंने x, y लिया. या ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, नेम, एज, और प्रिंट कर दिया वहाँ पे मैंने. नाउ आई एम प्रिंटिंग लाइक दैट. प्रिंट मैंने करा यहाँ पे, प्रिंट नेम. I can print like that, name and comma. I have used and. Then I want to take result in same line. Then I have written print, that is age. So आप यहाँ से जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले 1 लिखा, और जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने नेम की वैल्यू दे दी संजय एंड कॉमा एज इक्वल टू 22. So when I execute this, you can see the output Sanjay, name is Sanjay and value age 22 it is displaying. So this is about keyword arguments. This is about keyword argument. अब इसमें नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन इज वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट. कीवर्ड आर्गुमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं हम? वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट्स. एक था आपका आर्गुमेंट और फिर था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स. अब क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं कि हमें पता ही नहीं कि आपको कितनी वेरिएबल कितने नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट लेनी है आपको. यू डोंट नो. फॉर दैट in this case we use double asterisk with parameter. In this case we use double asterisk with parameter. So कैसे इसको करेंगे? Again we understand with example. सपोज हमने एक फंक्शन बनाया डेफ माई लिस्ट. अब मुझे पता नहीं कि इसमें कितनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आनी है, तो मैंने सपोज x नाम से बना लिया यहाँ पे डेफ माई लिस्ट, देन डबल एस्ट्रिक मैंने यहाँ पे लगाया और x लिख दिया यहाँ पे. क्लियर? और मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल प्रिंट x ऑफ, सपोज मैंने x ऑफ 2 लिख दिया यहाँ पे. और यहाँ से जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, माई लिस्ट फंक्शन को कॉल किया मैंने, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, नेम अजय, एज 22, एंड कोर्स BCA. अब मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स आर्गुमेंट पास करी हुई हैं. सॉरी, यहाँ पे इस लाइन को हम प्रिंट करेंगे. अब हमें पता नहीं कि कौन सी आर्गुमेंट, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे पास हुई हैं. वी विल जस्ट यूज लाइक दैट. प्रिंट, सपोज मैं लिखता हूं प्रिंट x ऑफ एज. तो व्हाट इट विल प्रिंट? इट विल प्रिंट एज वैल्यू, दैट इज 22. इफ आई विल राइट a name, it will print name. If I will write course,
in single quote. This is because you know this work as like a dictionary. It is work like a dictionary. It work like a dictionary, and dictionary contains key and value pair. और अभी जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में हमने जो डिस्कस किया था, यहाँ पे जो हम पास कर रहे थे, ये एक तरह से क्या है, टपल है। टपल के फॉर्मेट में डेटा जा रहा है यहाँ पे। जब भी हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट करेंगे तो हमारा डेटा किसके फॉर्मेट जाएगा, टपल फॉर्मेट में जाएगा। टपल फॉर्म ऑफ डेटा जाएगा इन आर्गुमेंट के फॉर्मेट में। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ पे पाइचार्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट है। डिफाइन वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन पाइथन। तो हमें पता नहीं यहाँ पे हमें कितनी आर्गुमेंट पास करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल एस्टेरिक लगा दिया, और मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया है। और मैंने यहाँ पे केवल, अब यहाँ पे जब मैंने डिस्प्ले फंक्शन 1 को कॉल किया, नेम संजय दिखा है, एज 22 लिखा है, और कोर्स लिख दिया मैंने BCA। अब मैं यहाँ पे जब इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट में मैंने एक्स ऑफ नेम लिख दिया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। व्हेन आई विल एग्जीक्यूट इट, it will display the name Sanjay. So any number of keyword argument I can take now. Suppose मैंने यहाँ पे दोबारा जब कॉल किया display 1 नाम से, अब यहाँ पे मैंने केवल 2 ही आर्गुमेंट दी, नेम संजय दिया, और दूसरा मैंने दिया एड्रेस दे दिया, यहाँ पे दिल्ली दे दिया मैंने यहाँ पे। सो इफ आई विल प्रिंट एक्स एड्रेस नाउ, नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले वाले में कीवर्ड आर्गुमेंट में हमने 3 पास करी हुई हैं, और दूसरे वाले कॉल में हमने कीवर्ड आर्गुमेंट कितनी पास करी है, 2 पार्ट करी है। बट इट विल वर्क, सॉरी 8DDRE, first it will displaying like that, line 5. Name Sanjay and address Delhi. Sorry. Suppose I have given like that 2 argument here, age equals to 22, and I have given age here. Now I have taken 2 argument. In first I have taken 3 argument, so it will display output like, first it will display Sanjay 22, and in second case also Sanjay 22. So in this case, in first case में हमने क्या किया, 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करी हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करी हैं, और सेकंड केस में हमने क्या किया है, 2 नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करी हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ डबल एस्ट्रिक। अब यहाँ पे डबल एस्ट्रिक लगाने से पता लग रहा है, अगर मैं डबल एस्ट्रिक नहीं लगाता हूँ तो सीधे एरर आ जाएगी। यहाँ पे टाइप एरर आ गई, डिस्प्ले 1 गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नेम।
सो जब हम वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट लेते हैं तो उसके लिए हमको डबल एस्ट्रिक का यूज करना पड़ता है. अंडरस्टैंड? दिस इज अबाउट वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट्स. क्लियर? So this is about today lecture. We will continue this lecture tomorrow also. Which in this no, we can write in one time also. In both case it will display Sanjay. In first, when this is first call of function, this is second time of call function. पहले टाइम जब हमने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करी है हमने, लेकिन हम प्रिंट किसको कर रहे हैं? नेम को कर रहे हैं. सपोज हम यहाँ पे कोड्स को प्रिंट करते तो क्या आता आउटपुट? बिकॉज एरर जनरेट हो जाएगी क्योंकि आपका कोड्स वाला आर्ग्यूमेंट इसमें सेकंड वाले में कॉल में नहीं है. तो वी कैन सपोज यहाँ पे हम एज को प्रिंट करते और देन इट विल गिव द आउटपुट लाइक दैट 22 22 एज 22 एज 22. बट फर्स्ट केस में हमने 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है और सेकंड केस में हमने की आर्ग्यूमेंट कितने लिए हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कितने लिए हैं? 2 ली हुई हैं. नाउ अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? नाउ क्लियर और स्टिल डाउट? सो दिस इज अबाउट टुडे टॉपिक. वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो ऑल्सो. इसमें कुछ और पार्ट्स भी हैं और कल भी हम इसको डिस्कस करेंगे. इसमें और भी टॉपिक्स हैं. सो आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ. बाय बाय, टेक केयर.